شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا. کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے مخاطبت فرماتے ہوئے فرمایا، بالخصوص جو کفار مکہ تھے ان کو سمجھانا مقصود تھا. فرمایا کہ یہ دیکھو تمہیں قرآن مجید جھنجھوڑ کر بار بار وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کبھی تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. یہ جو تم نے پتھروں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا اور ان کو اپنا معبود بنا کر تم بیٹھ گئے، بھلا یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ تمہیں نقصان دے سکے نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکے، اور یہ جب خود کو ہی نہ بچا سکیں اور جب اپنی حفاظت نہ کر سکیں تو تمہارے یہ وہ ناصر و مددگار کیسے ہوں گے؟ ان کے بازوں ٹوٹ جائیں، بازوں کا اعضاء کاٹ دیے جائیں تو کاٹے ہوئے اپنے اعضاء خود ہی نہ جوڑ سکیں تو وہ تمہاری تخلیق کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے تخلیق ہی نہیں کی اور ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے تخلیق کرنا، تو تمہیں یہ پھر زیب نہیں دیتا کہ تم اشرف المخلوقات ہو کے ان بتوں کے آگے اور ان پتھروں کے آگے تم سر جھکا کے بیٹھ جاؤ اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دو. اللہ اکبر. تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کی عبادت نہ کرتے، پوجا نہ کرتے، جو پست ہیں ہر وقت ندی نالے کے اندر پڑے رہیں اور خود کو کسی بلند جگہ پہ نہ رکھ سکیں اور کبھی پاؤں کے نیچے آ جائیں تو خود کو بچا نہ سکیں. تمہیں ان پست چیز کی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں تو تسبیح اور عبادت اس رب کی کرنی چاہیے تھی جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. فرمایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اپنے اس رب کی تسبیح کو بیان کرو جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، جس کی بلندی کو آج تک سمجھ کوئی نہیں سکا. تو جتنا جو سب سے بالا ہے اور سب سے اعلیٰ ہے تو تمہیں تو اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی. الذی خلقک فسوی، اور وہ اعلیٰ بھی ہے اور اس نے تمہیں تخلیق بھی کیا اور پھر فسوی برابر تخلیق کیا. کان بنائے تو برابر بنائے، آنکھیں بنائی تو دونوں برابر بنائی. اور والذی، اور بہترین خوبی اور سب سے بڑی صفت یہ جو مجھے بہت پیاری لگی اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ والذی قدر فہدی، وہ رب جس نے تمہیں فطری طور پر ہدایت کا چراغ عطا فرما دیا. یار کوئی مسلمان نہ بھی ہو، کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہ بھی ہو، تو اللہ نے اس کو بھی فطری طور پر ہدایت کا چراغ عطا فرما دیا ہے. عقل اس کا کہہ دیتا ہے کہ میاں یہ چیز اچھی ہے تمہارے لیے اور یہ چیز تمہارے لیے بری ہے. اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر ہدایت کا چراغ رکھ کر دیا ہے. اللہ اکبر. سامنے تنکا اڑتا ہوا آ رہا ہو تو ہم چاہے دیکھ بھی نہ رہے ہو، ہماری پلکیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. تو پوچھا جائے کہ یہ ان پلکوں کو کس نے کہا کہ آنے والا تنکا آ رہا ہے اور تمہیں یہ نقصان دے گا؟ تو کہا کہ کسی نے نہیں کہا. والذی قدر فہدی، وہی رب ہے جس نے یہ فطری طور پر آنکھ کو یہ ہدایت کا چراغ بخشا ہے کہ آنے والا تنکا تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور جلدی سے تم بند ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنے والی آفات سے اور نقصان سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سوچ دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ مفسرین نے ایک اور بھی بہت پیاری مثال عطا کی. انہوں نے کہا کہ جب بطخ کے بچے نکالے جاتے ہیں تو بطخ کبھی بھی اپنے انڈوں کو خود حرارت نہیں دے سکتی، تو اس کے انڈے مرغی کے سینے کے نیچے رکھے جاتے ہیں اور وہ مقررہ ایام کے اندر وہ سینے کی حرارت دے کر بطخ کے انڈوں سے وہ بچے نکال دیا ہے. اللہ اکبر. اب بچے تو نکلے تو مرغی کے سینے کی حرارت سے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ماں کون ہے، ماں کا چہرہ ہی نہیں انہوں نے دیکھا. لیکن اب جب یہ وہ انڈے پھوٹے اور وہاں سے بچے نکلے تو مرغی ان بچوں کو لے کر جب جاتی ہے، آگے ایک چھپڑ آتا ہے، تالاب آتا ہے. اب مرغی تالاب کے کنارے پر رک جاتی ہے اور وہ بطخ کے بچے کود کر اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں میاں اب انہوں نے تو اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ جانتے نہیں ہیں، ان کی ماں بطخ نے ان کی تربیت نہیں کی کہ تالاب کے اندر کیسے تیرنا ہوتا ہے. لیکن وہ آئے مرغی کے ساتھ
اور मुर्गी उनकी माँ किनारे पे खड़ी हो गई है, लेकिन ये बद्दा के बच्चे अंदर छलांग लगा रहे हैं। तो इनको किसने कहा है कि तुम पानी के अंदर छलांग लगाओगे तो तुम्हें पानी नुकसान नहीं दे सकेगा? और मुर्गी को किसने कहा है कि तुमने अंदर नहीं जाना, अगर तुम अंदर दाखिल होगी तो तुम्हारी जान बच नहीं सकेगी? कहा कि इसी से समझ लीजिए वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, वही रब है जिसने फितरी तौर पर हिदायत का चराग अता फरमाया है, जिसने मुर्गी के पाँव के नीचे जंजीरें बांध दी कि तुम अंदर नहीं जाना, तुम जाओगी तो नुकसान का जान का नुकसान उठा बैठोगी। और बद्दा के बच्चों को कह दिया है कि तुम अगर चले भी जाओगे पानी तो एरा कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो कहा कि ये रब ताला है जिसने हर चीज को फितरी तौर पर हिदायत का चराग अता फरमा दिया। तो कहा कि तुम्हें तो उस रब की तस्बीह बयान करनी चाहिए थी जो सबसे आला भी था और तुम्हें फितरी तौर पर चराग हिदायत भी अता फरमा दिया, लेकिन तुमने क्या किया? वो जो तुम्हारी मदद ना कर सके, जो अपनी मदद ना कर सके, तुम्हारे सामने की कहानियां हैं कि तुम्हारी पड़ी हुई ये कहानियां हैं, उनके बाजू अज़ाए बदनियां काट दिए जाएं तो वो खुद अपनी हिफाजत ना कर सकें तो तुम्हारी भला क्या हिफाजत करेंगे? और तुम उनके सामने अशरफुल मखलूकात हो के उनके आगे तुम सरों को झुकाकर बैठ गए उनकी इबादत के अंदर, तो इबादत करते हुए। तो कहा कि तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता था, तो मुखातबत करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू, अच्छा अगर इबादत वो बुतों के आगे इबादत करना ज़ेब नहीं देता था तो मौला करीम किसकी हम इबादत करें? तो फौरन ही फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू, फरमाया कि ए लोगों तुम इबादत करो। किसकी इबादत करो? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम उस परवरदिगार की इबादत करो, उसकी पूजा करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया। और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और फकत तुम्हें भी नहीं बनाया बल्कि तुमसे पहले वालों को भी उसने तख्लीक किया। अल्लाहु अकबर। यहाँ रब के एहसानात देखिए और कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी प्यारे अंदाज के साथ अल्लाह ताला ने जो अपने एहसान बताए इंसान को। कहा कि इंसान तुझे ये ज़ेब नहीं देता कि तुम किसी और की इबादत करो, बल्कि तुम्हें तो उसकी इबादत करनी चाहिए जिसने तुझे तख्लीक किया और तुमसे पहले वालों को भी तख्लीक किया। और लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया कि ताकि तुम उस रब से डरो। अगर तुम उस रब की इबादत नहीं करोगे और उसकी फरमा बदारी नहीं करोगे, नाफरमानी में लगे रहोगे, क्या फिर तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा? कहा कि नहीं नहीं, अगर तुम इबादत नहीं करोगे तो लअल्लकुम तत्तकून, उसके सख्त गिरफ्त वाले अजाब से भी तुम डरो, कभी भी तुम्हारी ये पकड़ हो सकती है। फिर आगे अल्लाह ताला ने और फिर एहसानात गिनवाए तो फरमाया अल्लज़ी जाल लकुमुल अर्द, उस रब ने फकत तुम्हें पैदा ही नहीं किया बल्कि वो ऐसा करीम रब है, जाल लकुमुल अर्द फिराशा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया। उसकी ये थोड़ी मेहरबानी है, थोड़ी करम नवाजी है, थोड़े करम नवाजी के ये रंग है और कितनी मोहब्बत का ये तरीका है, अंदाज है कि उसने तुम्हारे लिए, ए इंसान तुम्हारे लिए रब ने ज़मीन का बिछौना बना दिया। और 30 पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व इलल अर्दी कैफ़ सुतियत व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, वो करीम रब जिसने ज़मीन को बिछा कर रख दिया तुम्हारे लिए और आसमान को उसने खड़ा करके दिखा दिया। अल्लाहु अकबर। यार जिस रब ने तुम्हारे लिए इतना एहतमाम किया है, ये बिछौना बिछा के रख दिया है, बल्कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इतना खूबसूरत बिछौना बिछाया है कि वो उस बिछौने को उसने न इतना ज़्यादा नरम रखा है कि इंसान गिरे तो अंदर धंस जाए, और उस बिछौने को ना इतना ज्यादा सख्त रखा है इंसान गिरे तो ज्यादा चोट लग जाए। इतना हसीन बिछौना उसने बनाया है, ना ज्यादा सख्त है ना ज्यादा नरम है। तो कहा अल्लज़ी जाल लकुमुल अर्द फिराशुम वस्समाअ बिनाउ, उसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और आसमान को तुम्हारे लिए छत को बनाया। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह ने इंसान को प्रोटोकॉल दिया कोई दे सकता है दुनिया के अंदर? यार दुनिया के अंदर जितना गहरा दोस्त हो वो अपने दोस्त को जितना भी प्रोटोकॉल दे, कभी उसके नीचे इतना कारपेट बिछा सकता है? यार शहनशाही प्रोटोकॉल भी दे तो 1 किलोमीटर का कारपेट बिछा सकेगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा हसीन कारपेट और बिछौना बिछाया है, तुम चलते जाओ तुम्हारे कदम थक जाएंगे, थक कर बैठ जाओगे, अल्लाह ताला का बिछौना फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना प्यारा उसने तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है, उसका इतना वसी तरीन उसने बिछौना तुम्हारे लिए बिछाया। कहा कि अल्लज़ी जाल लकुमुल अर्द, ऐ इंसान तुम नाफरमानी करते हो, नाफरमानी के समंदर के अंदर डूबे हुए हो, लेकिन अपने रब की करम नवाजे तो देखो, उसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया और आसमान को उसने तुम्हारे लिए छत बना दिया। कितनी करम नवाजी के अंदाज हैं, कितनी मोहब्बत के अंदाज हैं।
तुम उस करीम रब को भूल गए, तुम्हें उसे भी भूलना चाहिए था। और फकत उसने इतना ही करम तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि आगे फरमाया कि वह अंज़ला मिनस समाई माअन, उस रब ताला ने उसी आसमान से जो छत बनाई थी वहां से फिर पानी का नुज़ूल फरमाया, बारिश का नुज़ूल फरमाया। और बारिश का नुज़ूल करने का उसका मकसद फकत एक ही था, कहा कि फ़अख़रज बिही मिनस समरात, उनके पानी के कतरे जमीन पर गिरे और पानी जमीन सब्जा उगाए। और सब्जा क्या हो, फिर तुम्हारे जानवरों और तुम्हारे खाने के लिए फल उगाए। यार रब ने कितना एहतमाम किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी को गुजारने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के अयाम बसर करवाने के लिए तुम्हारे रब ने ये इंतजाम किया है कि आसमान से पानी को बरसाया, और जब वो पानी जमीन की तह पे आया, जमीन पे आया, तो जमीन ने सब्जा उगाया और ऐसे हसीन फल उगाए कि मिनस्समरात रिज़्क़ लकुम, जो तुम्हारे रिज़्क़ का जरिया बन गए, तुम्हारे खाने पीने का अशिया बन गए। अल्लाह अकबर। यार जिस रब ने इतना करम नवाजियां की हैं और इतना चीजें गिनवाने के बाद उसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले वालों को पैदा किया, जमीन को उसने तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, आसमान को उसने तुम्हारे लिए छत बनाया, तुम्हारे लिए ये एहतमाम किया गया है। और फिर आसमान से उसने बारिश का नुज़ूल किया, उससे रिज़्क़ निकाला। अच्छा, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ एहतमाम किया है, क्या तुम उस रब के लिए एक ही काम नहीं कर सकते? क्या उस रब के लिए तुम एक ही काम नहीं कर सकते? तो वो काम क्या था? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए कुफार मक्का फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तुम्हारा रब तुमसे फकत एक काम यही चाहता है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह के सिवा किसी की तुम इबादत न करो, किसी के आगे सर न झुकाओ। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तुम अल्लाह के सिवा किसी को भी माबूद ना ठहराओ। तो वह अंतुम तालमून, और तुम भी इस चीज को खूब और अच्छी तरह जानते हो। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग की ये खोपड़ी भी दी है, अकल भी दिया है, फहमो इस्तिदराक भी दिया है, और तुम्हें इतना वो फितरी तौर पर हिदायत का चिराग भी दिया है। हर अच्छे भरे बुरे का तुम वो जानते हो, अच्छी तरह तुम्हें तमीज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपने हकीकी रब को भूलकर तुमने मजाजी रब तलाश कर लिए, अपने हाथों से रब बना लिए। तो कहा कि अगर तुम इसी तरह से उनकी इबादत में और पूजा में लगे रहे तो लअल्लकुम तत्तकून, अपने रब के अजाब की गिरफ्त से डरो। अल्लाह ताला ने अगर हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है तो उस पर इस्तिकामत की दौलत भी अता फरमाए।